Hello and good morning, everyone. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all of you? I hope you all are fit and fine at your homes. So, how's your study, students? I hope that is also good. So, students, in today's class, we are just going to study about the chapter number 11 of history. And what is the name of this chapter? New Empires and Kingdoms. What is the name of this chapter? Repeat after me. New Empires and Kingdoms. Students, before I'm going to start this video, I'll just tell you something. It is very important to understand this chapter. You have to watch full video at least thrice. कम से कम आपने ये वीडियो 3 times देखना है. And whenever you are just watching this video, take a book, टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है, पेंसिल लेनी है. द वर्ड इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट फोकस ऑन वीडियो. एंड द सेकेंड थिंग, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर वर्ड, यू कैन चेक फ्रॉम द डिक्शनरी. इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी, यू कैन चेक फ्रॉम द गूगल एज वेल. गूगल पे जाकर आप वो वर्ड लिखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो द गूगल विल हेल्प यू टू एज अ डिक्शनरी, आपको उस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए. अदरवाइज यू कैन आस्क विद मी, आस्क फ्रॉम मी इन ऑन अ क्वारी टाइम. सो शेल वी स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर. कि वी आर जस्ट रीडिंग, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग, डिक्लाइन ऑफ कुशाना एम्पायर. सेकेंड, द गुप्ता एम्पायर. यहाँ पर पीपल आर सेइंग गुप्ता, इट्स कॉल्ड अ गुप्त. ओके, ये गुप्ता नहीं कहा जाएगा, इट्स कॉल्ड अ गुप्त. द गुप्त एम्पायर, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड. द डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर, हर्षवर्धन, लिटरेसी एंड एजुकेशन, चैरिटी, the rulers of the southern regions. So beta, before I'm going to start, growth of the kingdom and changing then, this is the timeline. First of all, this is the timeline. I can explain again. This is a timeline. These are the timeline. The first one is 0. After 0 we can 100 CE. We have already discussed in some previous chapters. 200 and the 300. In 300 there is a Shrigupt, Chandragupt first and Samundragupt. After that in 400 CE, यानी कि BCE, that is a Chandragupt second. In a 570 CE, that is the end of Gupta Empire. This is a timeline कि हर्षवर्धन कब आए, गुप्त एम्पायर कब स्टार्ट हुआ, एंड ऑफ द गुप्त एम्पायर. दिस टाइमलाइन यू हैव टू मेड इन योर नोटबुक. आपको आपकी नोटबुक में ये टाइमलाइन बनानी है. ओके, सो शेल वी स्टार्ट. बेटा, ग्रोथ ऑफ किंगडम्स एंड चेंजेस देयर इन अ वॉज अ कॉन्टिन्यूस फिनोमिना. With the concurrent passage of time, new rulers emerged. They conquered different regions and had different policies of the governance. The difference which come about this time was now in a variation of earlier system, and that only Kshatriyas could rule. We have already read about in our previous chapters. So now people from the Vaishya community were coming to power. So the kings were equally competent as their the procedures. We come to know of them from the prashastis. Prashasti is a Hindi word, beta. I can explain in a later. Prashasti and many other sources. In this chapter, we shall study about the important king and happening of the period covering 4th century CE to the 7th century CE. बेसिकली बेटा हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 4th century से लेकर 7th century तक के बारे में बात करेंगे. सो बेटा, द फर्स्ट डिक्लाइन ऑफ कुशना's empire. We have already read about the Kushna empire.
These downfall of decline means patan, khatam hona. The downfall of Kushana Empire began in the 3rd century CE by the earlier 4th century BCE. बेटा 3rd century से लेकर 3rd century तक कुशना एम्पायर था. देन आफ्टर दैट 4th century स्टार्टिंग में ही कुशना एम्पायर फिनिश होने लगा, डिक्लाइन होने लगा. Many independent states come into being in the northern parts of India. They were being ruled by different king having small kingdom. Beta after that the in a starting of 4th century CE, बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स थे जिन्होंने कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगे. एंड इन द स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट द रूल्ड ऑफ डिफरेंट किंग्स हैविंग स्मॉल किंगडम्स. द गुप्त एम्पायर, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, यू हैव टू नो दिस. वन ऑफ द किंगडम इन मगध, मगध इज अ प्लेस नेम, मगध रीजन. ओके, दिस इज द मगध रीजन. मगध रीजन I'll show you in. This is the Magad region, the part of Uttar Pradesh, the part of the Magad region, the part of Uttar Pradesh, some part of Bihar. This is the Magad region. Have you seen this? I'm pointing the cursor here. So beta, this is the Magad region. Region was ruled by the name Shri Gupt. Okay, एक किंग थे जो कि किसके थ्रू कौन कहाँ रूल कर रहे थे, मगध रीजन पे. एंड हिज नेम इज श्रीगुप्त. इट सेड दैट ही बिलोंग टू वैश्य कम्युनिटी एंड दिस वॉज अ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड किंग. क्या कहते थे कि ये मैं वैश्य कम्युनिटी से हूँ, आई एम नॉट बिलोंगिंग फॉर द क्षत्रिय कम्युनिटी. ही रूल्ड इन द पीरियड 280 CE. हिज सन घटोत्कच. What is the name of the Shri Gupta sons? Ghatotkacha. Ghatotkacha took over the region and he continued to rule over 40 years. बेटा as you know that मैंने आपको hierarchy बताई थी कि फादर का रूल और थ्रोन किसको मिलता था, सन को. सो श्रीगुप्त के फादर कौन, श्रीगुप्त गुप्त एम्पायर से थे. सो श्रीगुप्त के सन कौन थे, Ghatotkacha. After his father, he can take over his throne and he can continue the rule 40 years. Then came his son Chandragupta. और घटोत्कच के पुत्र का नाम क्या था, यानी उनके सन का नाम क्या था, चंद्रगुप्त. दिस चंद्रगुप्त, इट्स नॉट टू मिक्स अप द चंद्रगुप्त मौर्य. हम इस वाले चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य से कंपेयर नहीं करेंगे, वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे. यहाँ पर हम घटोत्कच के सन की बात कर रहे हैं. हिज नेम इज ऑल्सो अ चंद्रगुप्त. आप भी देखते होंगे आपके नेम के बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों का नेम सेम क्लास में आपके नेम होते हैं, और आप एक ही पर्सन के नेम से बहुत सारे बच्चे भी होते हैं. सो ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले वो मौर्य चंद्रगुप्त नहीं है, ये घटोत्कच के सन है चंद्रगुप्त. दिस चंद्रगुप्त इट्स नॉट बी मिक्सड अप विद द चंद्रगुप्त ऑफ मौर्य एम्पायर सिंस देयर इज अनदर किंग नेम्ड चंद्रगुप्त. आफ्टर सम टाइम दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड चंद्रगुप्त सेकेंड. ठीक है, वी कैन सी ना नेक्स्ट पेजेस में पढ़ेंगे. द नेबरिंग किंगडम ऑफ वैशाली, Vaishali is it's a part of Bihar side. Vaishali was under this Lichavis. Okay, ये एक एरिया किंगडम का नाम था वैशाली. हमने वैशाली के बारे में गौतम बुद्ध वाले चैप्टर में भी पढ़ा है. This Lichavis was said to be Nepali origin but settled in India. Basically लिच्छवी वंश जो था उनका जो ओरिजिन हुआ वो नेपाली साइड से हुआ था, नेपाली थे, बट दे कैन सेटल्ड इन इंडिया. They ruled of kingdom Vaishali which covered portion of North Bengal and Bihar, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. This clan obtained possession of Patliputra, the capital of Kushnas. बेटा कुशनास की कैपिटल थी पाटलिपुत्र. See, this is the Magad and this is the Patliputra. मगध के अंदर ही था पाटलिपुत्र and this is the main capital of that time. कुशना इज अ वंश, सो उसका ये कैपिटल थी. इन 4th century
CE, the Lichavis princess got married to a king in the Magad who was called चंद्रगुप्त फर्स्ट. बेटा लिच्छवी एक किंगडम का नेम था. उनकी प्रिंसेस की शादी किससे हुई? मगध के किंग से हुई. और हु वॉज कॉल्ड अ चंद्रगुप्त फर्स्ट. चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम फर्स्ट से हुई. सक्सेसिव किंग्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी. बेटा डायनेस्टी इज अ वर्ड. द डायनेस्टी मीनिंग series of a king who are come from the same family. What is that meaning of dynasty? The series of king who are come from the same family. यानी कि जो एक वंश चला आ रहा है, परदादा, फिर दादाजी, फिर फादर, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा. दिस इज कॉल्ड अ डायनेस्टी. ओके, दिस इज कॉल्ड अ डायनेस्टी, कि जिनकी पुरखों से चीज़ें पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चली आ रही हूँ. हैव यू गॉट अंडरस्टैंड दैट? गुप्त डायनेस्टी के फादर, पहले फादर सन, फिर फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. ओके, सो दीज आर द किंग्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी इन सक्सेसिव. श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामागुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्त, नरसिम्हगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड, विष्णुगुप्त, वैन्ययागुप्त, भानुगुप्त. These are the successive kings of Gupta dynasty. You can this also write this also in your notebook. आपको पहले ये टाइमलाइन बनानी है. Then after that you had made write these all the kings in your notebook. आपको ये notebook में kings के names भी लिखने हैं. This is the second homework of today. And tomorrow is your holiday na? Tomorrow is a Republic Day. So today is your 2 homework. Actually 3 homeworks. Okay. First we are talking about the Chandragupta first. So beta, the king of Chandragupta first, I was under a lot of influence of Kumar Devi. The rule of Chandragupta first was under a lot of influence of Kumar Devi, the Lachvi princess. Basically किसके इन्फ्लुएंस में थे? कुमार देवी लच्छवी की प्रिंसेस थी. Coins bearing the figure of princess speaks of content of her influence. यानी कि चंद्रगुप्त के टाइम जो हम कॉइन्स देखते हैं, जो हमें एग्जीबिशन के टाइम, खुदाई के टाइम पे कॉइन्स मिले, उसमें हम उस चीज़ की कुमार देवी की झलक को उसके इन्फ्लुएंस से बनाए गए, ये देखा गया है. चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकम अ किंग ऑफ पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र इज अ प्लेस नेम and a capital name, and establish a kingdom along the Ganga's river. यानी कि गंगा रिवर के किनारे इन्होंने अपना किंगडम बनाया हुआ था. His kingdom extended from Bengal to Prayag. The region Chandragupta first is said to have come in the end of 330 CE. यानी कि 330 CE में इनके रीजन का, इनके किंगडम का एंड हो गया. सेकंड थे Samudragupta. Chandragupta first was succeeded by a Samudragupta in 330 CE. He resigned for about 50 years. यानी कि समुद्रगुप्त ने कितने साल तक राज किया? 50 years. Inscriptions on a pillar which was erected by Ashoka has inscriptions on Samudragupta on the other side. बेटा हमने इंस्क्रिप्शंस पढ़ा था. इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो कोई भी किंग अपनी, जिसे हम प्रशस्ति बोलते हैं, ये कहीं पर भी किसी पिलर पे, अशोका पिलर पे आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे. दिस इज अ इंस्क्रिप्शन जिस पे अशोकाज ने, और अशोका पिलर पे हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे. ऑन द समुद्रगुप्त ऑन द अदर साइड्स. आफ्टर द सक्सीडिंग टू द थ्रोन of the empire, he subdued and power revolting against the authority of Gangatic plans and brought their dominance under his rule. He is said to have led a military campaign across the Deccan region and also controlled the forest tribes of the Vindhya region. Basically beta क्या होता था? I'll just tell you the small story about this कि whenever
कोई भी रीजन, आपको पता ही है कि रीजन को कंट्रोल करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो एवरीवन हैज़ टू अटैक ऑन दिस. हर कोई किंगडम दूसरे किंगडम में मिलना चाहता था और हर कोई एक दूसरे पे पावर शो करना चाहता था. एंड बेसिकली देयर इज द गंगैटिक प्लेन्स मतलब आपने लैंड फॉर्म्स पढ़ी हैं. सो गंगेटिक प्लान इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, फोर्थ मोस्ट फर्टाइल रीजन था. सो हर कोई किंग चाहता था कि वो गंगेटिक प्लान उसके किंगडम में मिक्स हो जाए. So basically, the Samudragupta has a large military campaign and he has to also control the forest area of Deccan region. He performed the Ashwamedh Yagna. आपने अश्वमेघ यज्ञ के बारे में भी पढ़ा हुआ है. He performed the Ashwamedh Yagna to embellish declare his supremacy. यानी कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज दैट अश्वमेघ यज्ञ. अश्वमेघ यज्ञ में अश्व मीन्स हॉर्स. एक हॉर्स को छोड़ा जाता था और वो हॉर्स जिन जिन रीजन से जिन जिन किंगडम से होके गुजरता था वो किंगडम उस किंग के अंडर आ जाता था जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया है. और जिस भी किसी रीजन के किंग ने उसे रोक दिया या किसी भी रीजन के पर्सन ने उस अश्व मीन्स हॉर्स को रोक दिया तो वहाँ के किंग से उस किंग को फाइट करनी पड़ती थी. हिज किंगडम इंक्लूडेड लोअर बंगाल, अपर असम एंड नेपाल. ही लेड अनदर कैंपेन along the eastern coast across modern day of Odisha, Andhra Pradesh and northern part of Tamil Nadu. He captured large territories even through the let remain to power or local rulers, but they were ordered to accept his supremacy. They were required to pay him tax and revenue. यानी कि समुद्रगुप्त का कंट्रोल डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था. They have to increase his kingdom, increase his power also, and all the kings who have to already ready to pay a tax and revenue. यानी कि कर और टैक्सेस देने के लिए भी वो रेडी थे. आर्ट एंड म्यूजिक. अब हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दे आर फॉन्ड टू द आर्ट. समुद्रगुप्त वॉज अ गुड स्पेशली इन म्यूजिक एंड सिंगिंग. स्पेशली दिस इज द कैरेक्टर ऑफ समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त एक किंग होने के साथ साथ, एक पावरफुल किंग होने के साथ साथ, ही इज अ ग्रेट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग ऑल्सो. ही वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज पोट्री. यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा की गई बहुत सारी कविताएं आज भी बहुत जगहों पर पाई जाती है. ही ऑल्सो प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द वीणा. वीणा क्या है? देयर इज अ नो नेम ऑफ अ लेडी. यहाँ पे लेडी का नाम नहीं है. इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, वीणा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ही रिस्पेक्टेड द लर्न पीपल. उन्हें पढ़े लिखे लोगों से, जिसने कुछ भी लर्न स्किल्ड चीज़ों से वो उनकी बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट करते थे. ही गेव रिवॉर्ड टू पीपल फॉर लर्निंग संस्कृत लैंग्वेज. और वो उन लोगों से जो कि पढ़ना चाहते थे उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे. एंड ही विल गिव द रिवॉर्ड मीन्स प्राइज भी देते थे, पैसा भी देते थे कि लोग संस्कृत लैंग्वेज को पढ़े. ही ऑल्सो डोनेट मनी टू द ब्राह्मण्स. और वो मनी किसको भी देते थे? ब्राह्मण्स को देते थे. रिलीजियस बिलीव्स एंड टॉलरेंस. यानी कि समुद्रगुप्त का बाई नेचर कैसा था कि उनका ही वॉज डिवोटी ऑफ हिंदू गॉड विष्णु. यानी कि वो किसको मानते थे? विष्णु को. हु? समुद्रगुप्त. ओके, यहाँ हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं. ही इज अ ग्रेट फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक. हिज रिलीजियस बिलीफ, he was a very devotee of Hindu god Vishnu. He respected the other religion, even allowed the king of Sri Lanka to set a monastery to at Gaya. बेसिकली उन्होंने ये अलाउ किया कि किसी किंग को, श्रीलंका के किंग को, कि वो अपनी मोनेस्ट्री को बोध गया में, ठीक है, गया इज़ अ प्लेस ऑफ बिहार में एक जगह है गया, वहाँ पर एज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस टू फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज़्म. हमने गया के बारे में बुद्धिज़्म में ही पढ़ा है, बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में पढ़ा है. सो वो अपने हिंदू रिलीजन को तो रिस्पेक्ट देते ही देते थे. ही वॉज ऑल्सो हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड इवन अलाउ टू ऑल रिलीजन्स. उन्होंने श्रीलंका के एक मोंक को एक मोनेस्ट्री लगाने के लिए
गया में भी प्लेस दिया कि वहाँ पर लोग आएँ और जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहते हैं वो बुद्धिज़्म को भी फॉलो कर सकते हैं। कॉइन्स एंड करेंसी। कॉइन्स मीन्स आप देखते हैं सिक्के, करेंसी मीन्स पैसा। हिस्टोरियंस हैव फाउंड मैनी गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के टाइम पर जितने चीज़ें हमें यूज़ होती थी वो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। द कॉइन्स हैड अ ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ डिज़ाइन, यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस था इन डिज़ाइन का। हैव यू सीन इन दिस पिक्चर? द इम्प्रेशन ऑफ द कॉइन्स वरीड, दे डिपिक्टेड द किंग प्लेइंग वीणा। आपको देख रहे होगा किंग इज प्लेइंग द वीणा, ठीक है। होल्डिंग अ बो, ट्रैम्पलिंग अ टाइगर, ठीक है, यहाँ पर एक आपको बो दिख रहा होगा और ट्रैम्पलिंग अ टाइगर ऑल्सो। द प्रयाग इंस्क्रिप्शन डिपिक्टेड हिम अ हीरो 100 battles. These प्रशस्ति डिस्क्राइब हिम अ महाराजा धीराज और किंग ऑफ किंग्स। बेटा समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी गई थी, जैसे महात्मा जी को हमने एक उपाधि दी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी को हमने एक उपाधि दी महात्मा की, उसी तरीके से इनको एक टाइटल दिया गया महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मीन्स किंग ऑफ किंग, यानी कि राजाओं के राजा महाराजा धीराज समुद्रगुप्त, ठीक है। और प्रशस्ति, प्रशस्ति बेसिकली इज अ वर्ड, हिंदी वर्ड है बेटा ये, जो कि इनके बारे में इनकी तारीफों के लिए चीज़ें लिखी गई हैं कि इन्होंने ये इतने स्ट्रांग थे, इतने पावरफुल थे, है ही हैज़ अ हीरो, जिन्होंने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। दिस इज द टाइम काइंड ऑफ कॉइन्स एंड दिस इज द मैप। सी बेटा दीज आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त, जो ये पिंक वाला एरिया है दिस इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के टाइम का है, मगध एंड पाटलिपुत्र। द सेकेंड इज येलो समुद्रगुप्त, सी दिस सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मालवा फ्रॉम एमपी, दिस इज द पार्ट येलो पार्ट, कितना ज़्यादा पार्ट है जो कि समुद्रगुप्त के अंडर था। हाउ कैन बी पावरफुल, कितने पावरफुल थे। ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ सेम रिलीजन, यानी कि हिंदू रिलीजन के लिए भी रिस्पेक्ट है, एज वेल एज फ्रॉम द अदर रिलीजन्स ऑल्सो, गॉट इट। एंड सी बेटा एक पर्सन जो कि इतना आर्ट एंड कल्चर को लेकर स्ट्रॉन्ग है, क्वाइंस को लेके स्ट्रॉन्ग है, ही हैज़ अ ग्रेट फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग एज वेल, एंड ही इज़ अ सुपरमेसी, इतनी पावर थी, ही हैज़ जस्ट कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ इंडिया। So beta we can just rest the class here only. The Samudragupta was succeeding by his elder son Ramagupta, who was said to be have murdered because of his incompetence by Chandragupta II. This Chandragupta II ascended the throne of Patliputra about 375 CE, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटा रामगुप्त आए, ठीक है, और जिसके बाद की उनके बेटे का मर्डर कर दिया गया, एंड आफ्टर हिज कंप्लीटिंग चंद्रगुप्त सेकेंड आए जिन्होंने थ्रोन को संभाला 375 CE में। सो वी कैन जस्ट लीव द क्लास हेयर ओनली एंड जस्ट हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू, टेक रेस्ट, be happy, and just use the mask and sanitizers also, and do your work on time. We can meet in the next class, okay, and read the chapter also. And beta this is your homework also, you have to do keywords, आपको keywords भी करने हैं because tomorrow is a holiday na, so this is the keywords you have to do in your notebook. And this successive king of Gupta dynasty, this is your homework, and this timeline you have to write in your notebook. So तीनों ये काम आपने अपनी notebook में करने हैं with the help of pen or pencil. This timeline you can make with the pencil, and apart from this you can write the pen, okay, and use only black and blue pen only. And thank you all of you for taking this class, and I hope you all are good. Thank you so much students.